A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hope you are doing well with the grace of Allah Almighty. Welcome back again in the online session during this COVID-19. So don't consider this free time as your vacations. This is the high time to study and to address the shortcomings that you have gone through in the whole session, because as you know there is a smart syllabus and you have to be act smartly in order to get your goals in board exams. So there were shortcomings as you have gone through your exams in a recent past. So there are some shortcomings, there are some loopholes जो अभी हमें इस टाइम पे हमें इसको एड्रेस करना है. So please don't take it as non-serious issue, this is a serious issue. So let's start with another very important thing that you lack in your standards exams, that is how to attempt biology paper in board examinations. The paper provided is of total 60 marks and the time allowed is 2 hours. That 15 minutes out of 2 hours is for objective, that is of 12 marks, and subjective, that is of 48 marks. In objective the time given is 1 hour 45 minutes. Subjective have two parts, part 1 and part 2. Part 1 is of 30 marks and part 2 is of 18 marks. Part 1 is about the short question answers, and that is in total you have to attempt 5 questions from each part. That is question 2 you have to attempt 5 parts, question 3 you have to attempt 5 parts, and question 4 you have to attempt 5 parts out of 8, and that is of total, each question is of 10 marks and in total it's of 30 marks. Part 2 you have to attempt 2 long questions and each of 9 marks, और हर long question के दो part हैं A और B, and you have to complete these 2 long questions. Now let's begin with the objective type questions, and for the objective type question there are 12 MCQs given in the question paper, and you have to you have allocated either code A or code B, या आपको कोड A पेपर दिया जाता है कोड B. सो आपके पास 12 MCQs हैं. सो प्लीज इनको सही से अटेम्प्ट करना है आपने. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर कोड. So please don't forget to write code on the side where the code is required. And now as you have seen in the grid that is provided, so you have to fill the option. अब से आप पहले के देख रहे हैं कि इसकी ऑप्शन B है, तो आपने इसको completely बॉक्स को फिल करना है, ओवरराइट नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं करना. इसमें किसी को आपने, अगर आपको नहीं आता तो आपने उसको डबल राइट या रिमूवर यूज करके उसको आपने करेक्ट नहीं करना. ठीक है, जैसे ही कोई आप गलती करेंगे दैट योर नंबर विल बी डिडक्टेड. ठीक है, अब आप लोगों की तो है प्रैक्टिस हो गई है. नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट वेरी स्मार्टली इन ऑर्डर टू गेट 12 मार्क्स. ये बहुत इजी 12 मार्क्स होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्टिव मार्क्स. इट्स अ ट्रिकी पार्ट बिकॉज इसके 48 मार्क्स हैं. पार्ट 1 में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स. एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, there you have to attempt 2 long questions that is of 18 marks. अच्छा जी, क्वेश्चन पेपर का सैंपल है. इसमें आप देख रहे हैं पार्ट 1 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, और हर पार्ट में 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. एंड आउट ऑफ 3 लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन. अच्छा, इट्स अ सैंपल पेपर कि जैसे आपने पेपर को स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको मार्जिन लाइन 1.5 इंच की मार्जिन लाइन जरूर लगानी है ऑन. अगर आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं सो ऑन योर लेफ्ट साइड आपने इसको लगाना है, मार्जिन लाइन लगाना है. उसके बाद बड़ा क्लियरली आप स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव टाइप और फिर क्लियरली मेंशन करेंगे इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, एंड द नंबर यू विल राइट ऑन योर आंसर शीट विल बी एग्जैक्टली ऑफ दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये 4th अटेम्प्ट किया है देन यू हैव टू राइट 4th इन दिस पोजीशन. ठीक है, इसको आपने 4th बताना है कि दैट इज द 4th नंबर. सो में आपको ये बताना जरूरी है कि ये फिनोमिना क्या है और ये होता किसमें है. ठीक है, that हैपेंस इन द एजेस ऑफ द लीव्स ऑफ सम ग्रासेस एंड सम.
सो ये इसकी डेफिनेशन में बिकॉज डिफाइन म्यूटेशन, इसमें आपकी फुलफिलमेंट हो जाती है। अच्छा जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन है। प्रेशर फिल्ट्रेशन आपको उसको मेंशन करना है कि दैट इज अ प्रोसेस दैट हैपेंस इन द किडनी, और उसमें होता क्या है कि ड्यू टू द प्रेशर देयर इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, एंड दैट इज डन इन द ग्लोमेरुलर पार्ट ग्लोमेरुलस। सो because it takes place in glomerulus, that is it is called glomerular filtrate। इस तरह ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मो का वर्ड किसके लिए यूज होता है, रेगुलेशन के लिए किसके लिए यूज होता है, आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन ले, यू विल गेट द 2 मार्क्स। अच्छा जी, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। सो प्लीज आपको आपको इसमें एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन देनी थी, और आपको एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन के कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट क्लोराइड आइंस है, यूरिया है, सोडियम आइंस है। अगर आपको ये बिल्कुल सही आता है फिर आप इसको अटेम्प्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। सो आपने सिर्फ सिंपल आप ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स देंगे, इसमें कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं लिखनी। यू हैव टू अटेम्प्ट राइट सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड दैट्स इट, यू विल गेट द 2 मार्क्स। सो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 3। सो आपने क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3 स्टार्ट होना है। सो क्वेश्चन 3 का कौन सा पार्ट आपने स्टार्ट करना है, उस पार्ट के नंबर देंगे। सो द कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट यू हैव टू मेक लाइन, सो यू कैन डिफरेंशिएट वेल, और ये इससे एग्जामिनर को मार्क्स देने में बहुत आसानी होती है। नाउ द क्वेश्चन वाज व्हाट आर द मूवेबल जॉइंट। तो इस मूवेबल जॉइंट्स में आपको उसकी डेफिनेशन भी देनी है, और प्लीज एक एग्जांपल भी साथ दे दिया करें, दैट इज गुड फॉर यू। Now the examples are the ball and socket joint. Next question was the role of tendons. So tendons are the tough bands that are the connective tissues। अभी हम ये बता देंगे कि टेंडन्स उसका फंक्शन क्या है, सेम इज द केस रोल ऑफ लिगामेंट्स क्या है। नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन देंगे, प्लस एग्जांपल देंगे कि आप ये कहाँ कहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है। सेम इज द केस डिफरेंशिएट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव टू मेक लाइन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट एसेक्सुअल विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन दें और एक आध एग्जांपल दे दें कि इसकी कौन सी एग्जांपल है, एसेक्सुअल की और सेक्सुअल की कौन सी एग्जांपल है। अच्छा जी, जिस तरह लोकाई था, लोकाई की एग्जांपल आप डेफिनेशन देंगे, देन यू कैन गेट द मार्क्स। Same is the case spermatogenesis and oogenesis. Differentiate. So in order to differentiate, you have to make line and get 2 marks. Same is the case with the grafting, और grafting में आपने इसको एग्जांपल दी तो 2 मार्क्स आ गए, ठीक है। So out of these 8 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, और यहाँ पे इजीली आप 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखें। Long question was that what are the methods for the removal of extra carbon dioxide? That was a so simple question that was asked in your examination, but your temptation is very important. So how to attempt your exam paper, how to attempt your question, it's a very important। क्या आप बताएं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा प्रोसेस है, और कहाँ से ये रिमूव होता है, ये कहाँ से इसका सो के स्टोमेटा का जिक्र जरूर होना चाहिए। प्रोसेस डिफ्यूजन का प्रोसेस है, उसके बाद कुछ यंग रूट यंग स्टेम्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिफ्यूज होती है, इट्स थ्रू जनरल सरफेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम इज द केस के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैसे रिमूव किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था बोन्स। अच्छा, इसमें भी बोन्स में आपने सिर्फ बोन का स्ट्रक्चर बताना था, बोन्स की टाइप्स बता दी, बोन्स का स्ट्रक्चर बता दिया, दैट्स इट। दैट आई थिंक दैट इज इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। कि बोन का पार्ट क्या है, मैट्रिक्स है, बोन्स के सेल्स को हम क्या कहते हैं, देयर आर द नंबर ऑफ बोन्स। सो in order to make your question more appropriate and more attractive, please draw diagram। जहां जहां रिक्वायर्ड है डायग्राम, जहां आप बना सकते हैं, मेक श्योर कि आप उसमें डायग्राम जरूर बनाएं। Now next question was Watson and Crick model of DNA। Make sure कि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी थी, because it is about the structure of DNA। अब DNA के स्ट्रक्चर में आप बताएंगे, आप जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करें। जो आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है मेंशन करना, मेक श्योर कि आप उसको बेस्ट वे में हाईलाइट करें इन ऑर्डर टू मेक द एग्जामिनर
अंडरस्टैंड वेल कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं. So in the end, there are the few things that keep in your mind. If you fail in your examinations, that doesn't mean that you lose. It means it's a first attempt in learning. You can learn again. So end is not an end, it's an effort never dies. And if you get no as an answer, remember no means next opportunity. So think positive. This is a quote. I find it more positive and I find it more interesting and I find it more relative. That is why I have added in my lecture. So hopefully अगर आपको कोई और question है, please do ask me as many times as you want. So this is the proper way to attempt your question. और अगर आपने करना है, it's a very easy way to get 60 out of 60 marks in your board exams. So because this is the high time to get the marks, because as you know, you have a smart syllabus, you have an ample time in order to make the lecture, in order to get marks in a very by making a very little effort. So have faith in yourself and make your maximum efforts to get your goals. सो नेवर एवर गिव अप. ये उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स कम आए हैं. प्लीज, लक ओनली फेवर्स you whenever you make your efforts and you will have faith in yourself. These two are the key to success. ठीक है. So thank you very much for watching me. If you have any questions, so do ask me. I will definitely try to answer all of your questions. Hopefully you enjoy listening this lesson. Allah Hafiz.